Hello everyone, welcome to Sunya IAS. Today we will be doing the topic wise discussion and analysis of UPSC CSAT previous year question papers और previous year question papers को जो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से किया जाए तो जो भी नया क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई नया कॉन्सेप्ट निकालेंगे, कुछ मिलके बनाएंगे, है ना। तो इफ यू हैव इफ यू वुड बी थॉरो विद दिस लेक्चर ऑफ माइन, तो आप यू विल बी एबल टू सॉल्व every question which is going to be asked in the examination. Today we will take up the topic of directions and distances and routes and networks. So actually जो ये टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, रूट्स एंड नेटवर्क्स इसका एक सब टॉपिक है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। ये इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है इसलिए जनरली पीपल कमिट मिस्टेक। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अरे क्वेश्चन देखा, अरे ये तो हो जाएगा हो जाएगा, इसमें कुछ कई बार गलती कर देते हैं। इफ यू आर अ लिटिल बिट अटेंटिव इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, एंड आई विल टेल यू कि कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, तो बहुत इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व। एंड एवरी ईयर यूपीएससी आस्क्स 1 to 2, even maybe 3 to 4 questions of this topic. So if any question comes out of this topic, that must be correct. Okay, sir has already discussed this topic very briefly in his lectures. So my advice would be कि you should be thorough with what sir has already taught in the class. Then आप इस लेक्चर को देखिए, एंड माई गोल इज कि आफ्टर दिस लेक्चर यू शुड बी आपको फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए व्हेन यू गो टू योर होम, या आप खुद से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी और किसी रिसोर्स की। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सो व्हाट आई थिंक इज कि दिस सेशन शुड बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव in terms of कि after every question I'll give you some time, maybe a minute or two, कि आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को पढ़ें, what you are understanding about that topic उसको देखें, and you try to solve. Even if you are not solving fully, at least आप उससे partially आप देखें कि कैसे कैसे सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप इन योर माइंड, एंड देन यू सी कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं एंड how am I am solving, because there is no point if I am solving the questions again and again. आपको भी साथ में करना पड़ेगा क्योंकि at the end एग्जाम में आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। So we'll start the topic of directions and distances and also routes and networks. So as I already told you कि sir has covered this topic, and you can see in the Sunya IAS website, you should take that my subscription, you should go to my subscription section, and there under this logical reasoning section you will find the topic of directions and distances and routes and network. And sir has covered this topic in 2 levels, basic level and you can see that advanced level, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों अच्छे से देखे हैं तो आप easily सारे questions कर सकते हैं, and then you see my lecture, क्योंकि हमने already we are working very hard to give you the topic wise bifurcation, so you should take full benefit of these lectures. Okay, so we'll start our topic. So before we start our lecture, I'll just give you a glimpse कि इस lecture in direction and distance में actually क्या करना है. Sir has already told you. I'll just give you a summary in 2 to 3 minutes कि what are the basic points you need to remember and what are the basic concepts. Okay, so the first thing is direction and distance में
तो इसमें फर्स्ट चीज है आपको डायरेक्शंस याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं दिया है तो जनरली आपको पता है जनरली मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम देखें तो दिस इज आवर नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ओके, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इमेजिन योर सेल्फ कि यू आर एट दैट प्लेस व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स कि यू नो somebody, some person A, वो he is taking a right, he is taking a left. So generally people get confused many times. So the easiest thing is you imagine yourself कि I am going, let's say I am going and I have to take a left. So how will I take the left? This is my left hand, I'll take this left and I'll take the left. Okay, I have to take right. What I'll do, I'll go, this is my right hand, I'll take that right. Okay, so you imagine yourself, that would be very easy, like it will make the things easier for you. Okay, so this is north south east west generally. So this angle is 90, everybody knows these all angles are 90. So even if in the question they ask take a right turn, so right turn means right means this angle I am making is 90 degree, unless or until in the question it doesn't give you a specific angle, whether I am turning 45 degree, 30 degree, 60 degree, 75 degree, something like that. You need to you know assume that it is 90 degree, you are turning completely right. So this is north south east west, this direction, this is north east direction, because this is north, this is east, so this is northeast. This angle is 45 degree, this angle is also 45 degree. Okay, so it is making equal angles with both the axes. This is northeast, this would be southeast, this would be southeast, this would be northwest, and this is southwest. Okay, I don't think there is any problem. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड बोलता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मेनी टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो सिंपल अपनी वॉच को देख लेना है, क्लॉक जो क्लॉक होती है उसको देख लेना है कि अच्छा इसमें सुई कैसे घूम रही है। ठीक है, तो जनरली इन द क्लॉक हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे जाता है इन दिस डायरेक्शन, टाइम ऐसे ही बढ़ता है। सो दिस इज आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इफ दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है? लेट्स से दिस साइड इज ए, this side is, let's say this side is A, this side is B, then what would be this side? Let's say this side is X, then there is this formula given by Pythagoras, X square is equal to A square this side plus B square this side. So basically how will you get it? X is equal to under root of A square plus B square. This is Pythagoras theorem. Okay, so there is nothing new, it is very easy. ठीक है, अब एक दो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं रूट्स एंड नेटवर्क के। रूट्स एंड नेटवर्क, आपका कभी भी अगर कभी भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिक से आता है तो आपको डायग्राम बनाना है, डायरेक्शन या डिस्टेंस का हो या इस टॉपिक का हो। ठीक है, if you are able to make the diagram, things will be very easy. Okay, so here we will use arrow कि let's say A B से मिलने जा रहा है, B is then going to C, A can directly go to C like this, or they will go कि how A will go to B? A will go to B by some means of transportation, let's say bus or rail, or B is going to see by airways like this. So like this you will make the diagram and automatically you will solve the question. अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, you need to check all the possibilities. Generally how people commit mistake
कि वो ना बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ए से सी जाना है तो ए से बी से सी, वो इसको भूल जाते हैं। तो दे मिस वन रूट एंड देन दे गिव द आंसर रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, थोड़ा कामली करना है। यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द पॉसिबल वेज। सो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ वी विल go to our first question of the today's lecture. Two friends X and Y start running and they run together for 50 meter in the same direction and reach a point. X turns right and runs 60 meter while Y turns left and runs 40 meter. Then X turns left and runs 50 meter and stops while Y turns right and runs 50 meter and then stops. How far are the two friends from each other now? Okay. So they have asked this question in the year 2022. So this is the last prelims जो हुआ है अभी, इसमें ये उन्होंने पूछा है। तो इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं। Two friends X and Y start running. अच्छा इसमें क्या है, you read one sentence and then you make the diagram, ठीक है। एक सेंटेंस पढ़ो, डायग्राम देखो, समझो कि क्या है। राइट लेफ्ट का सारा कॉन्सेप्ट यूज करना है, अपने आप को इमेजिन करना है। इतना ऐसा ही है इस टॉपिक में। टू फ्रेंड्स X and Y स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, लेट्स से ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां से वो चलते हैं 50 मीटर, बोथ X and Y। तो ये X और Y दोनों चल रहे हैं यहां से। X टर्न्स राइट। अब देखो, अब आपने को इमेजिन करो राइट लेफ्ट क्या है। मैं ऐसे जा रहा हूं राइट, मेरा राइट ये है तो X इधर की तरफ मुड़ गया और मेरा एंड X व्हाइल Y टर्न्स लेफ्ट और मेरा लेफ्ट ये है तो मैं गया तो ये Y लेफ्ट। तो अगर मैं यहां पे इमेजिन करो मैं ऐसे चल रहा हूं, सोचो मैं चल रहा हूं, आप चल रहे हो यहां पे, ये आपका राइट है, देन X टर्न्स राइट, ये आपने राइट, X ने ये राइट टर्न ले लिया, दिस इज X टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर। ओके, वेरी कूल। वाइल Y टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर, ये चल रहा है, Y लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इधर, तो Y इधर। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कंफ्यूजन में। दिस इज 40 मीटर, दिस इज Y, दिस इज X। ओके, देन X टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। अब X इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब X ऐसे जा रहा है, ये है X और वो ऐसे जा रहा है, तो X का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। ये X है, X टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, ये। ओके, X टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर एंड स्टॉप्स व्हाइल Y टर्न्स राइट। ये Y इधर जा रहा है, देखो आप, Y इधर जा रहा है, Y ऊपर जा रहा है एंड Y टर्न्स राइट, Y टर्न्स राइट। तो राइट कैसे, ये ऊपर जा रहा है। वॉच कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये Y हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, तो ये मेरा राइट होगा, तो Y इधर से राइट जा रहा है। राइट कितना जा रहा है वो, 50 मीटर, 50 मीटर। अच्छा, ध्यान ये बात देनी है आपको कि दिस इज ऑल्सो 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन, दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो गोइंग 50 मीटर, दिस इज ऑल्सो 50 मीटर। हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये अल्टीमेटली ये Y का डेस्टिनेशन हो गया, ये Y है और ये यहाँ पे X है। तो अब अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि इनका कितना बीच में डिस्टेंस है। तो भाई ये जब इक्वल है, दिस मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी, दिस लेंथ वुड बी इक्वल टू दिस लेंथ, दिस इज 40 प्लस 60, देन दिस होल लेंथ विल बी 40 प्लस 60, दैट इज 100 मीटर। कोई ऑप्शन दिया है कि 100 मीटर, ऑप्शन ए दिया है 100 मीटर। कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें, कुछ भी नहीं था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, है ना। इस टॉपिक में क्या सी सेट में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जबरदस्ती डिफिकल्ट बना के रखा है लोगों ने, है ना। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, 66 चाहिए होते हैं 200 में। अगर आप सर के लेक्चर और इसको फॉलो करोगे, थोड़ा थॉरो हो जाओगे, क्या करेंगे वो, इस क्वेश्चन को कुछ नया नहीं दे सकते, कुछ इसी में कुछ करेंगे, लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, यही कुछ करेंगे। अगर आप इतना कर लोगे आप 100 प्लस मार्क्स लाओगे, एंड इट इज़ वेरी इजी,
ठीक है, तो अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन से ना आप क्या करो, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा देन आई विल टेल यू बिफोर हैंड, वरना आप आई टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकेंड और अ मिनट, और आप उसका थोड़ा ट्राई करो कि राइट लेफ्ट का क्या है, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब बिफोर मी आप थोड़ा अपने डायग्राम बनाओ और देखो कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, और देखो मैं क्या कर रहा हूं उसमें, कुछ गलती हो तो उसको सुधारो, एंड देन यू ट्राई ऑल्सो इन द अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, and C are three places such that there are three different roads from A to B, four different from B to C, and three different roads from A to C. In how many different ways can one travel from A to C using these roads? अब देखो इसमें डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं हुई है इस क्वेश्चन में। They didn't use the word direction, north, south and distance. This is a simple question of routes and network. ये यहाँ से रोड जा रही, ये रोड इधर जा रही, इधर से इधर जा रही है ना, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स बनना है, कहाँ से कैसे जाएंगे, कितने वेज बनेंगे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली दे आस्क, एंड दिस क्वेश्चन अगेन हैज बीन आस्क्ड इन द ईयर 2022, तो रिसेंट क्वेश्चन है। So these kind of questions are being asked in your exam, so you need to be very attentive, क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, आप एक बार इसको भी देख लोगे then you will be able to solve all such questions of routes and networks. A, B and C are three places such that there are three different routes from A to B. ठीक है, मैंने मान लिया, this is A, this is B, this is C. Three different routes from A to B. Okay. ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, रोड नंबर 1 2 3, ठीक है। फोर डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के जाने के लिए चार डिफरेंट रोड्स हैं, ये एक रोड हो गई, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and this is fourth, and three different routes from A to C, and there is also direct way, A to C जाने के लिए भी वे हैं, कितने, three different routes। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, लेट्स से ये है 1 2 3, ठीक है। So now what they are asking is कि in how many different ways can one travel from A to C using these roads? अब A से C जाना है हमको, कितने different ways से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो, आप ट्राई करो खुद से करने का, आई वेट फॉर यू, थोड़ा सा सोचो क्या करना है इसमें, कैसे करेंगे। डायग्राम मैंने बना दिया है, सोचो अब क्या करना है इसमें। आप अगर अभी सोचोगे, यही थिंकिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग, ये एग्जाम में काम आएगी। तो अभी ऐसे मत सोचो कि नहीं आप वेट कर लेते हो, नहीं, साथ में करना है ना। आप सोचो इसमें क्या करना है। ओके, सो आई टेल यू कि क्या करना है इसमें। ये फर्स्ट रोड है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि यार मैं इस रोड से जाऊं और मैं ये वाला पहले रूट पकड़ूं, इसके बाद मैं ये वाला रूट पकड़ लूं, ये एक रूट हो सकता है। या तो मैं अगेन इससे जाऊं और अगली बार मैं इससे चला जाऊं, ऐसे जाऊं और इससे चला जाऊं, या अगेन मैं इसी रोड से जाऊं और इधर से चला जाऊं, और या फिर मैं अगेन इससे जाऊं और इससे चला जाऊं। तो मतलब अगर मैं ये जो रास्ता है एक, इस एक रास्ते से इसी में हम जा रहे हैं और इससे मैं चार डिफरेंट रूट जा सकता हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि मैं इधर पे रोड नंबर 1 पे गया और इस रोड नंबर 1 के बाद मैं आई कैन यू चूज आइदर दिस वे और दिस वे और दिस वे और दिस वे। सो इस रूट नंबर 1 से आई एम गेटिंग 4 वेज। रूट नंबर 2 से भी हम यही करेंगे, यहां से जा रहे हैं आइदर दिस 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 और दिस, तो अगेन सेकंड से भी 4 एंड सिमिलरली थर्ड से भी 4। ओके, सो 4
if I'll take this route, then I'll be having 4 option. If I'm taking this route, then also I'll be having 4 option. And if I'm taking this route, तब भी हमारे पास 4 option होंगे. Then total I have 12 ways till now. और ये तो डायरेक्ट रूट भी दिया हुआ है, दे हैव गिवन 3 रूट्स, तो ये तो डायरेक्ट ही है. तो आइदर आई विल टेक दिस रूट और दिस रूट और दिस रूट, देन आई विल बी हैविंग 3 मोर रूट्स टू गो टू सी फ्रॉम ए. सो देन टोटल आई विल बी हैविंग, सॉरी जस्ट अ सेकंड, आई विल बी हैविंग टोटल 12 प्लस 3 15 रूट्स. ओके, सो इसमें कुछ भी कठिन नहीं था. इससे जाएंगे आपके 4 रास्ते. So if, and these are like, you know, similar roots, then 4 into 3 12 plus 3 5, or you can add individually 4 plus 4 plus 4 plus 3. Okay, okay, so we will move on to our next question. Read this question. क्या है इसमें? This question has been asked in the year 2022. देखो 2022 में अकेले we are going to solve the third question of this topic, so you can see the relevance and importance of this topic. So the question is, consider the question and 2 statements given below in respect of 3 cities P, Q and R in a state. तो 3 सिटी है हमारे पास, P है, Q है, R है. How far is city P from city Q? ये अच्छा, इस क्वेश्चन में ना they have given the question first, तो ठीक है. How far is city P from city Q? स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है. तो सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R, सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R. ओके, सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R. लेट्स से दिस इज सिटी Q, एंड नाउ दे हैव गिवन कि सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R. लेट्स से R ये है 18 किलोमीटर. बट टेल मी वन थिंग, हाउ वुड आई गेट टू नो दैट आर यहाँ पे, आर यहाँ भी तो हो सकता है 18 किलोमीटर, यहाँ भी आर हो सकता है, यहाँ भी आर हो सकता है 18 किलोमीटर, यहाँ भी आर हो सकता है 18 किलोमीटर. सो इन दिस क्वेश्चन दे हैवंट गिवन द डायरेक्शन, दे ओनली गिव यू डिस्टेंस. नो डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन. एंड अगेन सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R. अगर इफ सिटी R दिस इज सिटी R, देन P इज 43. P है कहाँ? यहाँ है P, यहाँ है P, यहाँ है P, नहीं पता. So in this question, and then they are asking how far is city P from city Q. तो सिटी, अगर ये सिटी P है, this is R, तो R से कहीं Q है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है. तो how will you be able to solve the question when you don't know the direction? इधर भी हो सकता है ये Q, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. So I'll give you one very important concept. I'll give you a very important concept कि while solving any distance question, if you find the exact distance, you need 2 things. First, distance, obviously, है ना, and second, direction. Direction you also need, है ना. So if they have given you both distance and direction, then also you will be able to find the exact distance. अदरवाइज आप नहीं पता कर सकते. तो इसमें ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. नो, एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू आंसर, है ना. तो इफ इज बोथ स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर, नो, नो सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट. ओके, दिस ऑप्शन इज राइट, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी है, इसलिए हमने बोला कि हम नहीं बता सकते कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का. ठीक है. So let's move on to the next question. This question has been asked in the year 2021. A bank employee drives 10 kilometers towards south from her house and turns to her left and drives another 20 kilometers. She again turns left and drives 40 kilometers. Then she turns to her right and drives for another 5 kilometers. She again turns to her right and drives another 30 kilometers to reach her bank where she works. What is the shortest distance between her bank and her house? Okay, so they have given, you know, some 5 lines in this question, and then they asked you the distance. So this is simple direction वाला question है, simple. इसको थोड़ा सा आप करने की कोशिश करें अपने हिसाब से. CSAT निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन उठाओ, करना शुरू कर दो.
पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। इफ यू फॉरगेट द डिस्टेंस एवरी टाइम ना, तो आप यहाँ पे छोटा सा बना लो पहले ही एग्जाम में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपने पहले ही छोटा सा बना लिया। ठीक है, अगर आप भूल रहे हैं तो। अब देखो आप, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। लेट्स से ये इसका हाउस है, ये यहां से साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब लेफ्ट कैसे जा रहा है, जब साउथ जा रहा है वो ऐसे जा रहा है ना। आप अपने आप को इमेजिन करो कि मैं साउथ जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे 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 साउथ जा रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट है तो मैं इधर मुड़ूंगा। मतलब ये अगर ऐसे जा रही है तो इसका लेफ्ट ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कितना चलती है, टर्न्स टू लेफ्ट ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। फाइन, दिस इज 20। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। अब अगेन ये मैं ऐसे जा रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट है, अगेन लेफ्ट कितना जा रहा है, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। वेरी नाइस। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट नहीं दिख रही है तो इसको स्ट्रेट ही माने। ओके, देन शी टर्न्स टू हर राइट। अब ये ऐसे जा रही है, फिर से इसने राइट ले लिया फॉर अनदर 5 किलोमीटर। थोड़ा सा 5 लगना भी चाहिए, 5 नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कुछ। ये है 5। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, ये तो रुकी ही नहीं रही है, चली जा रही है। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। अब ये क्या कर रही है कि ऐसे जा रही है, फिर से राइट। कितना जा रही है, 30। ये 40 क्या है, ये पूरा डिस्टेंस 40 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 30 है। 10 कितना है, ये डिस्टेंस 10 है। ठीक, वेयर शी वर्क्स, व्हाट इज द शॉर्टेज। तो ये इसका ऑफिस हो गया, ये इसका हाउस है, ये इसका ऑफिस है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। अब एक बार देखो आप, ये 10, 20, 40, 5। अच्छा, ये 40 से अगर ये गया, 30 नीचे आया है, तो इसका नीचे से डिस्टेंस कितना बचा, 10 बचा, ये डिस्टेंस। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10। ये दोनों लेंथ बराबर है, तो अगर हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो दिस वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, अगर इन दोनों लाइंस को आप मिलाओगे तो दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10। तो ये जो लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो मुझे अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। दिस इज 20, दिस इज 5, देन दिस इज ऑल्सो 5, देन द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑफिस एंड दिस हाउस इज 25। 20 प्लस 5, 20 प्लस 5। कोई ऑप्शन है 25? ऑप्शन बी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ है? कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट इसमें, सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके अगर 2 भी आ गए एग्जाम में, सो आपका आराम से 2 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, बाकी आपका कट ऑफ का रास्ता उतना ही आसान होता जाएगा। ठीक है, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman runs 12 kilometer towards her north, then 6 kilometer towards her south, then 8 kilometer towards her east. In which direction is she from starting point? Okay, ये एंगल वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जो भी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट जो भी है। ठीक है, हम जो करते हैं, अब वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। ठीक है, ये भाई इधर चल गई वीमेन, 12 हो गया इसका, बहुत बढ़िया। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। अब ये यहां पे जा रही है, ये पलट गई, ये ऐसे ये पलट गई और इसी रास्ते पे फिर से वापस आ रही है, तो ये इधर पे ही वापस आई और लगभग ये अब इधर हो गई, 6 किलोमीटर वापस आ गई। तो जब 6 ये बचा, ये 12 पूरा है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये 6 बचा, क्योंकि ये इधर से वापस हुई है ना, ऐसे गई, मुड़ी, फिर से वापस आ गई, 6, तो ये भी 6 बचा क्योंकि ये टोटल 12 है। ठीक है, एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट।
अब ये वापस आ रही है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ईस्ट किधर होगा, ईस्ट इधर होगा। तो इधर से ये कितना चल गई, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फाइन। देन इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं अगर इसको मिला दूं, ये ये डायरेक्शन हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से ऑफ जो भी इसका फाइनल डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है, यही डायरेक्शन पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि इफ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, दिस इज ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉट साउथ, सॉरी वो मतलब साउथ नीचे है, वो नॉर्थ और ये ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट, तो ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ऑब्वियसली दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, फाइन। अब मुझे ये देखना है कि ये एंगल कितना होगा। ऑप्शन क्या है, लेस देन 45, लेस देन 45, मोर देन 45, मोर देन 45। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, मैंने आपको एंगल बताने के लिए एक आसान रास्ता बताता हूं कि 45 कैसे निकालते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट इज tan 45। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि ये 45 डिग्री से अगर कंपेयर करते हैं या 45 डिग्री से कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस, पर आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। tan 45 कितना होता है, 1। मतलब इफ दिस इज वन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड इफ दिस साइड इज 45, देन tan 45 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो लेंथ है इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, ये होता है 45 डिग्री कंडीशन। ये किसी कंडीशन होगी, 45 डिग्री की कंडीशन है, ये अगर x है ये x है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, ये कुछ ऐसी डिस लेंथ है, और मैं पूछूंगा भाई ये एंगल कितना होगा, अब सॉरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो है ना, मैं इसको यहां से ऐड करता हूं, इफ आई ऐड connect these two lines, and if I ask what is this angle, so this will obviously be more than 45 क्योंकि this length has been increased। फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली ये दिख रहा है 45 ये है, तो ये तो 45 से ज्यादा ही दिख रहा है। इफ आई इंक्रीज दिस लेंथ, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, मैं इसको बढ़ा देता हूं। ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं हम, लेंथ को बढ़ाते नहीं, इसको घटा देते हैं। लेट से मैं, आप बोल लो ये जो मैंने लेंथ यहां तक थी, पहले पहले यहां तक, सॉरी, अरे इनको फिर से ऐड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये पूरी लेंथ थी, ठीक है, ये कुछ ऐसे था, 45 है। अब मैंने इस लेंथ को घटा दिया, अब ये नई लेंथ है, और अब ये अगर मैंने इसको मिलाया इससे, तो ये एंगल ऑब्वियसली लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने ये सामने वाली साइड बढ़ा दी तो एंगल बढ़ गया, साइड घटा दी तो एंगल घट गया। तो अब सेम प्रिंसिपल अगर हम इधर पे अप्लाई करें, अगर सेम प्रिंसिपल अगर हम इधर पे अप्लाई करें कि अगर 45 कैसे होता, दिस लेंथ इज 8, इफ दिस लेंथ वुड हैव बीन 6, दिस लेंथ वुड हैव बीन 6, है ना, तब देन ये एंगल 45 होता। बट बिकॉज दिस लेंथ हैज इंक्रीज्ड, दिस एंगल इज मोर देन 45। ऑब्वियसली 45, ये एंगल 45 है ना, ये पूरा 45 से ज्यादा हो जाएगा। बट in the question which angle they asked this angle, north of east, this angle they are asking. So if whole angle, this angle is more than 45, this total is 90 degree. If this is more than 45, then this must be less than 45, 45। एनी डाउट, मैं फिर से इसको बता देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा अलग से डायग्राम में बता देता हूं मैं आपको कि मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज 6, दिस इज 8,
नाउ ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का एंगल, दिस एंगल दे आर आस्किंग, ठीक है। दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इफ दिस एंगल आई नीड टू आंसर वेदर दिस इज मोर देन 45 और लेस देन 45, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करो कि दिस इज 8, इफ दिस एंगल वुड हैव बीन 45 डिग्री देन नॉट दिस एंगल। अगर ये डिस्टेंस अगर जो ये है ये अगर 6 होता देन दिस एंगल वुड हैव बीन 45 डिग्री। अगर ये लेंथ 6 होती 8 की जगह तो ये 45 होता, बट दिस लेंथ इज मोर देन 6, then this angle, whole angle, this is greater than 45, right? But we are asking about this angle. So if this angle is greater than 45, then this angle obviously would be less than 45, because the sum of these two angle is 90 degree. This is more than 45, then this must be less than 45. So less than 45. तो अपना क्या है ऑप्शन, एक तो हमने नॉर्थ ऑफ ईस्ट निकाल लिया था, एंड एंगल लेस देन 45, ऑप्शन बी, ठीक है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज समवॉट न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इजी। आप बस डायग्राम देख लो, कभी भी कुछ ऐसा आए तो देख लो, अच्छा ये अगर साइड बराबर होती तो इतना एंगल था, अगर ये साइड बराबर होती बट ये साइड बढ़ गई है तो ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, जो भी हो जाएगा उसको चेक कर लेना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turns to the right and walks 50 meters again. Then he turns towards left and again walks 25 meters. If his house faces to the east, what is his direction from the starting point? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा सा घुमा देंगे कि हाउस उधर की तरफ फेस कर रहा है, आपका बैक इस तरफ है, किधर चलोगे, उधर जाओगे, वापस आओगे, क्या करोगे। तो मतलब आसान सी चीजें हैं, है ना, कुछ भी इसमें कुछ नया पॉइंट ऐसा नहीं है। आई गिव यू जस्ट 30 सेकेंड्स टाइम, आप देखो इसमें कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव रेड द क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, तो अगर ईस्ट इधर की तरफ होता है, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, हाउस फेसेस टू द ईस्ट, इसका मतलब उसका हाउस ऐसे है, ये इस तरफ को इसका हाउस फेस कर रहा है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अ मैन वॉक्स ऑन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, मतलब अगर हाउस इस तरफ है तो उसके बैक साइड वो चल रहा है, मतलब मैन इधर से ऐसे चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, यही तो मतलब है। हाउस अगर ईस्ट की तरफ है, उसके बैक साइड जा रहा है, मतलब वेस्ट, कितना जा रहा है, 25 मीटर्स, वेरी नाइस, बढ़िया। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन। अब ये मैं ऐसे जा रहा हूं, राइट, मेरा राइट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। ये थोड़ा सा आप देखना, 25 ज्यादा हो गया, 50 कम हो गया, बट डजेंट मैटर, फिर भी कर लेते हैं, किसी को कोई डाउट ना रह जाए यार। फिर से करते हैं, इसको बना लेते हैं डायग्राम जल्दी से। ये अगर, अरे सॉरी सॉरी, ये हाउस है ईस्ट, ये इधर पे चल रहा है 25 मीटर, थोड़ा सा और इधर, फिर उसने राइट लिया, राइट शायद, एंड देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, ये इधर जा रहा है, 50 ले लिया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, इधर की तरफ जा रहा हूँ, कितना जा रहा है ये इधर पे, अगेन 25 मीटर्स, है ना। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये अब यहां पे खड़ा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ। तो ये कैसे मिल रहा है,
ये कैसे, अगर हम इसको मिलाएं तो ये इस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, तो बेसिकली ये डायरेक्शन हुई, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन है क्या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें, कुछ नहीं है, बस जैसा जैसा एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चन पता है आपको यही करना है, यू यू शुड थिंक दिस क्वेश्चन एज योर इंस्ट्रक्टर, जैसा वो इंस्ट्रक्ट करे वैसा वैसा आप डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाओ और आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोला इसने 25 50 25 डायरेक्शन देखी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी डाउट है तुरंत से इसको बना दो एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ and R are three towns. The distance between P and Q is 60 km, whereas the distance between P and R is 80 km. Q is in the west of P and R is in the south of P. What is the distance between Q and R? अच्छा, while reading this question ना, what I thought कि इन्होंने फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने केवल डिस्टेंस दी थी, डायरेक्शन नहीं दी थी, तो मुझे लगा केवल डिस्टेंस दी है, डायरेक्शन नहीं दिया है, बट दे हैव गिवन द डायरेक्शन, तो आई थिंक ये सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस पर भी यही बोल देते कि भाई इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी है, बट दे हैव गिवन द डायरेक्शन इन द सेकंड सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और सोचो कैसे होगा। जनरली हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन बनाते हैं तब हम डिस्टेंस लिखते हैं। अगर मुझे लेट से एक बात बताओ आप, मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, मुझे ये पता है कि यार 250 किलोमीटर जाना है, तो मैं चलना थोड़ी ना शुरू कर दूंगा, पहले मुझे पता करना पड़ेगा किस तरफ जाना है, वो डिस्टेंस, वो डायरेक्शन पता हो कि नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, देन मैं 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, देन 5 किलोमीटर राइट जाना है या साउथ जाना है, किधर जाना है, तो यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन फर्स्ट। सो इवन इफ व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग योर डायग्राम, then you need to find the direction first and then you go for distance। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। Q is in the west of P, Q है ये, Q is in the west of P, अगर ये P है तो इसके वेस्ट में Q है, and R is in the south of P, और R, ये अगर Q है ये P है, ठीक है, और R कहां है, इसके साउथ में है, ये दिस इज P, Q is in the west of P, R is in the south of P। जब भी ये पूछते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, वेस्ट ऑफ P, R इन द साउथ ऑफ P, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर वो एंगल स्पेसिफिक बात नहीं करें, देन यू नीड टू आपको मानना पड़ेगा कि वो सेम लाइन में ही है या 90 डिग्री है, ऐसा ही कुछ है। ये वेस्ट ऑफ P में मतलब वो सेम लाइन में ही होगा, तो वेस्ट ऑफ P एग्जैक्टली ऑब्वियसली कोई इससे कोई एंगल नहीं बना रहा होगा, राइट, वो उसी में होगा, तो ऑब्वियसली तो दिस इज R, दिस इज एग्जैक्टली बिलो P। P, Q and R, 3 towns, the distance between P and Q is 60 kilometer, this is 60, whereas the distance between P and R is 80। ठीक है, तो what they have asked, what is the distance between Q and R, ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है, भाई ये डिस्टेंस आप बता दो कितना है। इसमें क्या क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इफ so this is a right angled triangle, so this is a right angled triangle, then you can and this distance they are asking, so then we can apply the theorem of Pythagoras। I have already told in the starting, जो भी बेसिक्स मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में, जो ऑलरेडी सर ने क्लास में बताया है, UPSC is not going to ask beyond those concepts and beyond these questions। What maximum UPSC can do is they can mix 2 or 3 questions, amalgamation of questions they can ask, पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकते, वो इसी से पूछेंगे। तो इसलिए अगर आपको मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, आपने कॉन्सेप्ट समझा है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क। आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट यूपीएससी कि यूपीएससी में अगर ऐसा पूछा है तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको करेंगे हम, दिस इज Q, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ 60 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ 80 का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो हाइपोटेन्यूस का होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। देन दिस इज 3600 and 80 squares is 6400, then this must be under root of 10,000 and then this is 100। कोई ऑप्शन है क्या? 100 किलोमीटर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, में कुछ भी नहीं है ऐसा। सो दिस इज 100। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, ये वो। थोड़ा सा आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आई विल गिव यू सम टाइम, और ऑनेस्टली ट्राई करना अपने आप से। आई थिंक इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो बहुत इजीली हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। आई विल गिव यू अ मिनट्स टाइम, देखो इसको क्या करना है, कैसे करना है। So I'll read down the question till A started from his house and walked 20 meter towards east। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तभी आपके दिमाग में ये डायरेक्शन चलनी चाहिए। आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि अच्छा ईस्ट ऐसे है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ वेरी स्पीडी मैनर। तो एक्सपेडाइट आपका तभी होगा सोल्यूशन निकालने का वे, जब आप क्वेश्चन लाइन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है। So A started from his house and walked 20 meters towards east, where his friend B joined him. They together walked 10 meters in the same direction. Then A turned left, right, and traveled 2 meters and 8 meters respectively. Again B turned on to left, followed by 5 meters to his right to reach his office. A turned right and traveled 12 meters to reach his office. What is the shortest distance between the two offices? Okay, so I think you must have made that schematic diagram. तो मैं करता हूँ। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है या डाउट है, वो देखो आपकी कहां पे आप फंस रहे थे। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, ये अगर ए है, यहां से अपने हाउस से स्टार्ट किया एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 20 चल गया, बहुत अच्छी बात है। वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, यहां पे उसको ना बी भी मिल गया, तो अब यहां से ए और बी दोनों ने चलना शुरू किया। They together walked 10 मीटर in the same direction, तो 20 मीटर ईस्ट जा रहा था, अब बोल रहा ना ये 10 मीटर और चला सेम डायरेक्शन, मतलब सेम ईस्ट डायरेक्शन में चला। Then A turned left while B turned right and traveled 2 मीटर and 8 मीटर respectively। मतलब A जो है he took a left turn, A इधर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा, ट्रेवल 2 मीटर। ठीक है, ये A है 2 मीटर, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A, कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि कौन था ये। एंड while B turned right and traveled 8 मीटर, बी मेरा ये है, मेरा ये राइट हैंड है, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो मैं भी अपने आप को इमेजिन करके राइट लेफ्ट डिसाइड करता हूं, तो सेम आपको भी ये फॉलो करना चाहिए इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन राइट एंड लेफ्ट, है ना, कि उसका राइट कि मेरा राइट, किसका राइट किसका लेफ्ट, है ना। तो इस चक्कर में नहीं फंसना है, जो भी है मेरा ही राइट लेफ्ट है, अपने आप को इमेजिन करोगे इजिली आपको पता चल जाएगा। अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर, बी टर्न्ड लेफ्ट, ये बी है, अगेन टर्न लेफ्ट, कितना 4 मीटर चल गया है, बहुत अच्छी बात है। फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, मतलब अब ये ऐसे चल रहा है 5 मीटर राइट, ये राइट है, ये राइट यहां से चला, ये 5, यहां पे ऑफिस किसका है, बी का ऑफिस है, बी का ऑफिस है, आ गया। A turned right and traveled 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, ये A है, ये राइट हैंड है, राइट कितना चल गया 12 मीटर, और ये किसका ऑफिस है, A का। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिसेस, तो ये एक ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होंगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी शॉर्टेस्ट, इसको अगर मैं इसको मिला दूं तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक, अगर आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, ये है यहां से यहां जाने का शॉर्टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। एक बात बताओ कि अगर
सॉल्व करने के लिए इसको मैं स्ट्रेट लाइन से बनाता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, देखो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करना। बोर्ड है तो शायद इतना स्ट्रेट नहीं होगा, फिर से गलत होगी, सॉरी। इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है जो भी है। इफ दिस लेंथ इज 8, दिस इज 2, देन दिस होल विल बी 8 plus 2 10, so this would be 10. This length is 4, this total is 12, then this must be 8, because this is already 4 given. वो डिस्टेंस लग नहीं रहा होगा पर ऐसा है, ये 4, दिस इज 4, देन दिस 4, दिस टोटल इज 12, देन दिस मस्ट बी 8. अब एक बात बताओ आप, दिस इज 8, दिस इज 10, okay, this length is 5 already given, this is 5 given, then what is this total length? 10 plus 5 15. So अगर जो हमारा ट्रायंगल है वो ऐसा बना, ये ट्रायंगल है, ये टोटल लेंथ है 10 plus 5 15, ये लेंथ है 8, हमसे इसका पूछा जा रहा है। तो अगेन इफ दिस इज x, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 64 प्लस 15 स्क्वायर, आई थिंक 225। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 64 प्लस 225, 549, 289, और ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक के, है ना? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ऐसे ना आपको याद होनी चाहिए। तो 289 17 का होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बिफोर हैंड यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि सीसैट का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है ना? तो फिर आप एग्जाम में ये इसका अंडर रूट निकालते नहीं बैठेंगे। यू नीड टू रिमेंबर कि 289 का 17 होता है। तो आप आई थिंक 25 तक के कर लेंगे तो दैट वुड बी इजी, कि 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 25 तक के आई थिंक दैट वुड सफाइस, दैट विल डू योर वर्क। 17 ऑप्शन बी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, directions for the following 3 items. Consider the given information and answer the 3 items that follow. Okay, directions for the consider the given information and answer the 3 items that follow. 8 railway station are connected. ठीक है, तो ये क्या है? पैसेज दिया हुआ है आपको, और उस पैसेज से बोल रहा है कि आपको ना 3 क्वेश्चन करने हैं। अगले 3 क्वेश्चन दे हैं, दे आस्क्ड, क्या है इसमें कि consider the given information and answer the 3 items that follow. This question has been asked in the year 2017. ठीक है, 8 railway station A, B, C, D, E, F, G and H are connected either by 2-way passages or 1-way passages. 1-way passages are from C to A, E to G, B to F, D to H, G to C, E to C and H to G. 2-way passages are between A and E, G and B, F and D and E and D. ठीक है, तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है? While traveling from, ये आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन है। एंड लेट मी टेल यू कि जैसा ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, 8 रेलवे स्टेशन, इसमें काफी रेलवे स्टेशन दे दिए और काफी चीजें दी हैं। देन दिस वुड बी, आई वोंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई गारंटी यू कि आपके कॉन्सेप्ट्स रूट्स एंड नेटवर्क पे क्लियर हो जाएंगे। इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी कैन नॉट आस्क इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ 2 आवर्स। डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट वही जो हमें आता नहीं है। तो अगर हमें ये कर लेंगे तो दैट वुड बी इजी, एंड यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको दोबारा देखना वीडियो। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है? क्योंकि while I was solving this question for the first time, मुझे भी टाइम लगा था इसमें, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि जो मैप की कहाँ से कौन जा रहा है, किधर से कौन, है ना? डी से एच, जी से सी, जब ज्यादा चीजें दी होती, कितने दी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 स्टेशन, है ना? देन
दिस बिकम्स अ लिटिल मोर क्लमजी, थिंग्स बिकम क्लमजी। तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं वन वे पैसेज। तो वन वे को ऐसे लिखते हैं वन वे, और टू वे ऐसे होता है, सबको ही पता है, ठीक है। वन वे मीन्स केवल ओनली वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। मैं हूं, आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर ओनली दिस वे, सो दिस इज वन वे। बट मैं बोल सकता हूँ मैं जा भी सकता हूँ ना आ भी सकता हूँ, दिस इज टू वे। वन वे रोड्स होंगे ना, आप देखते हो कि वहां पे एक ही डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही है, देयर आर टू वे रोड्स, आगे गाड़ियां जा भी रही हैं और गाड़ियां आ भी रही हैं। तो दिस इज द सेम थिंग, वन वे पैसेज एंड टू वे पैसेज। तो 8 रेलवे स्टेशन आर देयर, वन वे पैसेजेस आर फ्रॉम सी टू ए, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सी टू ए, ई टू जी, बी टू एफ, दीज ऑल आर वन वे। बी टू एफ ठीक से लिखते हैं, बी टू एफ, डी टू एच, जी टू सी, ई टू सी एंड एच टू जी। ये हो गए वन वे। एंड टू वे आर ए एंड ई, मतलब आप ए से ई की तरफ जा भी सकते हो और ई से ए की तरफ आ भी सकते हो। जी एंड बी ऑल्सो इज ऑल्सो टू वे पैसेज। एफ एंड डी एंड ई एंड डी, एफ एंड डी एंड ई एंड डी। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नेटवर्क बनाएंगे इसमें कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा कनेक्टेड। जब हम नेटवर्क बनाते हैं देन वी सी की जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो स्टेशंस आ रहे हैं, उनसे आगे का रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखो क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। देखो जी आ रहा है यहाँ पे, दिस इज जी, जी आ रहा है, कहीं और जी है, इधर भी जी है। तो अगर जी मतलब ई से जी जा रहा है, जी से आगे जा रहा है, तो अगर हम ऐसे बनाएं कि दिस इज ई, दिस इज जी, ई से जी और जी से सी, ये भी वन वे है, जी से सी बन रहा है, ठीक है। ठीक, ये दो मेरे हो गए। अब आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, सी पे खत्म हुआ है, सी पे खत्म हुआ है अगर, जस्ट अ सेकेंड, देयर वाज सम मॉस्किटो आई थिंक। सी पे खत्म हुआ, देन अगेन विल ट्राई टू फाइंड सी। सी कहीं दिया हुआ है इसमें, सी, सी से ए, ये दिया हुआ है सी से, तो मैंने सी से ए बना दिया, ठीक है। ई जी सी ए बन गया है भाई, ये भी हो गया, बहुत सही। अब हम क्या करें, ई से सी भी जा रहा है, जो भी रिलेट, जो टर्म बनते जा रहे हैं उनको ही ढूंढना है हमको। तो ई से सी, अच्छा ई से सी दिया हुआ है, तो ई से सी एक डायरेक्ट रूट है, वन वे, दिस इज वन वे रूट, दिस इज ऑल्सो डन। अब हमारे पास बन रहा है बी से एफ, डी से एच, एच से जी, जी ऑलरेडी दिया हुआ है और एच से हम जी जा सकते हैं, एच से हम जी जा सकते हैं। तो अगर दिस इज एच, हमने ऐसे कहीं एच मान लिया, तो एच से हम जी चले जाएंगे, एच से जी भी खत्म हो गया। अच्छा, डी से हम एच की तरफ जा सकते हैं, डी से हम किधर जा सकते हैं, एच की तरफ जा सकते हैं। तो अगर यहां पे डी से एच की तरफ जा सकते हैं, अगर मैं डी इधर पे मान लूं, तो डी से एच इधर हो जाएगा वन वे, ठीक, ये भी हो गया। बी से एफ बच्चा, अच्छा बी से एफ, इस पूरे वन वे में कहीं बी और एफ नहीं आया है ना अभी तक, तो सॉरी नहीं आया, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो अभी हमारे पास ये बचा। अब टू वे पैसेज देख लो, ए से ई टू वे है, ए से ई, ठीक है, दिस इज टू वे, ठीक। जी से बी, बी अभी नहीं है, बी को छोड़ दो। एफ से डी, अभी वो भी नहीं है। ई से डी, अच्छा ई से डी, डी इज ऑलरेडी गिवन ना, तो हम ई से डी वाला, ए से ई वी हैव डन, ई से डी वाला देखते हैं। ई से डी, ये डी है, ये टू वे पैसेज, ये दोनों भी खत्म हो गए। अब जी से बी और एफ से डी, एफ से डी, जी से बी, ठीक है। अब क्या करें, अगर मैं यहां पे बी ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, बी की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो बी से जी और बी जा सकते हैं,
तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। वेरी नाइस, जी से बी हो गया, एफ से डी है और बी से एफ है, ये दोनों बन रहे हैं रिलेटेड, बी से एफ, तो बी से एफ है सिंगल, ये मैंने कहीं एफ ले लिया, अगर बी से एफ हो रहा है और एफ से मैं डी डायरेक्शन बाय डायरेक्शन जा सकता हूं, टू वे पैसेज है। आई थिंक दिस इज आवर नेटवर्क, ये भी हो गया। वी हैव यूज्ड ऑल द गिवन कंडीशंस इन मेकिंग आवर नेटवर्क। वॉज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे बनेगा पूरा डायग्राम, एंड स्पेशली आप घर पे तो आप फिर भी बना सकते हो, एग्जाम के उस ऑलरेडी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में इन द गिवन टाइम आपको सारे क्वेश्चन करने, और फिर ये 3 क्वेश्चन दे दिए, और बात ये है कि इस पैसेज को अगर आपने डायग्राम बना लिया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चंस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। तो आपके सीधे 3 क्वेश्चन के मार्क्स लूज होंगे और आप तीनों मार्क्स ले जाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूं। मैंने स्टार्टिंग में पकड़ा कि भाई जो कॉमन वाला है, ई से जी और जी से आगे सी, जी को मैंने पकड़ लिया क्योंकि जी के आगे का रूट दिया हुआ है, ई से जी से सी, ये पकड़ा मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सी है, तो व्हाट आई ट्राइड टू फाइंड कि इज देयर एनी पैसेज जो सी से शुरू होता है, सी के आगे जाता है या सी से कहीं रिलेटेड है। तो अगर मैंने देखा कि हाँ एक ई से सी जा रहा है, तो वो मैंने कनेक्ट कर दिया, वन वे पैसेज है। जो सी से भी जा रहा है, एक सी से ए जा रहा है, सी से ए जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने व्हाट आई ट्राइड टू फाइंड कि जी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एच से जी, एच नहीं दिया हुआ है, तो एच कहीं हमने हाइपोथेटिकल प्लेस पे मान लिया और एच से जी का एक पैसेज बना दिया। देन D से H, H we found out. Now there is something called D to H is given. Then we place D and D to H. We have placed. ठीक। इसके बाद B से F वाला बच रहा था, ना तो B दिया है ना F दिया है, तो we have kept it on hold. Then we move to the two-way passage. कि जो already given है, हम we play on the already given stations. तो A से E जाना है, this is E, this is A, this is two-way passage. G से B, two-way passage. F to D, E to D, F से D, E से D, ठीक है। अब अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, while traveling from C to H, which one of the following stations must be passed through? While traveling from C to H, C to H, C ये है, H कहाँ है, दिस इज H। बोल रहा है कि अगर मुझे C से H जाना है, which one of the following stations must be passed through, तो C से H में कैसे जा सकता हूं, या तो मैं एक काम करूं ऐसे जाऊं, C, अच्छा उल्टा यहां जा नहीं सकते बिकॉज दिस इज वन वे, दिस इज टू वे, C A से E वी कैन गो बिकॉज दिस इज टू वे, A E, देन वी कैन गो D, E से D एंड देन वी कैन गो टू H, और देन अगेन क्योंकि C से ना H तक जाने के लिए आपको यहां जाओगे, यू नीड टू गो ऑन बिकॉज दिस इज द ओनली वे, यहां जाओगे, और A से आपके पास जाने का एक ही रास्ता है, देन दिस इज E, क्योंकि आप कैसे भी जाओगे आपको E के बाद ही यू कैन चेंज द रूट, आप या तो ये रूट ले सकते हो या यहां जाके इधर पे जा सकते हो, पर इधर से आ नहीं सकते आप, तो आपको ना यही रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि C से जाने का ओनली एक ऑप्शन है ये वाला, और यहां पहुंच गए तो यहां से भी यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू विल रीच हियर, देन यू मस्ट गो टू E, E एंड A ऑल्सो, A भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि C के पास आपके पास कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, A ऑप्शन में दिया नहीं है, देन आई थिंक G वगैरह तो नहीं होगा, E B, तो दिस इज ओनली E, ठीक है। तो वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम C टू H आपको कौन सा स्टेशन जाना पड़ेगा, A जाना पड़ेगा और E, दैट इज मस्ट, है ना, अदरवाइज यू कैन गो E G B, है ना, F D H, आपका ये भी रूट कर सकते हो, पर आपको E तो जाना ही पड़ेगा और A भी जाना पड़ेगा, A ऑप्शन में दिया नहीं है, देन द करेक्ट ऑप्शन वुड बी E। सो इफ यू हैव मेड दिस डायग्राम करेक्टली, देन आई थिंक कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। चलो एक बार और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम F to A without passing through any station more than once? F to A
विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। ठीक है, तो हम फिर से डायग्राम में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, F2A को वो करते हैं हाईलाइट। F2A मतलब मुझे ये F और ये A दिस स्क्वायर यहां से यहां जाना है। एंड कैसे जाना है, सच दैट कि कोई भी स्टेशन मोर देन वंस ना आए। ठीक है यार, तो हम फिर से अपना रूट वगैरह देखना शुरू करते हैं कि कैसे जाएंगे। मैं अगर यहां से चला, F से मुझे A जाना है, तो आई राइट द नेम ऑफ द रूट। आप खुद भी देखो कैसे करेंगे। F से मैं D जा सकता हूं, D से मैं H जा सकता हूं बिकॉज सब ये वन वे, G से जा सकता हूं, C जा सकता हूं, तो एक तो रूट ये हो जाएगा F D H G C A। एक तो ये रूट हो जाएगा F, क्योंकि ये से टू वे D H G C A। ठीक है, यू नीड टू सी कि कौन सा टू वे है कौन सा वन वे, क्योंकि टू वे में यू कैन गो आइदर साइड एंड वन वे में आपको केवल ओनली वन साइड से आप जा सकते हो। अब अगला रूट देखते हैं। F से आप चले, D पहुंचे, F D। अब मैं E की तरफ आ जाऊं, F D E G C A, तो एक ये हो जाएगा F D E G C A। कौन सा रूट हो जाएगा, F D E G C A। ठीक है, अब एक और रूट देखें F, क्योंकि F से वी हैव ओनली वन ऑप्शन, वी हैव टू गो फ्रॉम D, क्योंकि B तो आप जा नहीं सकते हो। F D E, अच्छा डायरेक्टली C भी तो जा सकते हो यार, F D E C A, ये भी तो एक रूट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन द क्वेश्चंस ऑफ रूट्स एंड नेटवर्क यू हैव टू लुक फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर आपने दो पता कर लिया, तीन पता कर लिया, तो आप डायरेक्टली सेकंड और टू और थ्री पे टिक नहीं लगा सकते अनलेस और अंटिल यू हैव वेरीफाइड दैट वेदर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबिलिटीज और नॉट। इफ यस देन दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। अगर नहीं तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज देखो, इवन इफ इट इज टेकिंग योर 2 or 3 or 5 minutes एक्स्ट्रा, दैट इज वर्थ इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन मेकिंग द डायग्राम। ठीक है, तो मैंने कहा F D E C A, F D E C A। अच्छा एक बात बताओ कि मैं अगर F से चलूं, F D E, अच्छा E से A भी तो टू वे पैसेज डायरेक्ट है, तो F D E A, ये चार हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट रूट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो अगर ये सारे रूट हो जाएंगे आपके, तो कौन कौन से रूट हो जाएंगे, F D H G C A, मैं यहां पे भी लिख देता हूं अगर वहां पे ना दिख रहा हो, F D H G C A, F D E G C A, F D E C A, F D E A। और कोई रूट है, F D H G C A हो गया, F D, अच्छा मैं अगर B की तरफ अच्छा तो मैं तो फिर वापस F में पहुंच जाऊंगा। E से नहीं, I don't think there is any more, there is any more possibility left. तो I think the option would be 4। क्या कोई 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 4 ऑप्शन, राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमने कोई भी स्टेशन मोर देन वंस क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रूट बिटवीन G and C is closed, which one of the following stations need not be passed through while traveling from H to C? G and C का रास्ता क्लोज हो गया है, which one of the following stations need not be passed through while traveling from H to C? तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये डायग्राम फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। ओके, हम फिर से डायग्राम बना देते हैं, दैट वुड बी गुड। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मुझे जितना याद आ रहा है मैं बनाता जा रहा हूं। ऐसे था, E से G ये सारे सिंगल वे थे, E से C शायद सिंगल था, E से A ये डबल था, यहाँ पे कहीं H था, यहाँ पे कहीं D था, और मेरे हिसाब से
डी से एच का एक बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक बी था और यहाँ पे एक एफ था। तो एफ से डी का शायद जो था वो बी से एफ ऐसे जा रहा था, डी से एफ ऐसे जा रहा था, डी से एफ ऐसे जा रहा था, और बी से एच का जो था आई थिंक, अच्छा ई से डी का भी एक रूट था, तो बी से जी ये एक ऐसे था। एक बार मैं डायग्राम देख लेता हूँ थोड़ा सा ना, भूल गए हैं कि क्या कैसे करेंगे। अच्छा ये है ई से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है, डी से एच से जी, डी एच जी और बी जी वैसे हो रहा है, डी एच जी और बी जी कंबाइंड है, और ई से डी टू वे है, यही तो था, ई से डी टू वे है, एच जी इधर आके बी एफ आ गया, बी से एफ और एफ डी, बी से एफ और एफ डी, ठीक है, ओके फाइन, आई थिंक वी हैव मेड आवर डायग्राम। अब क्या बोल रहा है, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, तो ये रूट क्लोज हो गया, तो मैं क्लोज करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, दिस रूट इज नॉट देयर, ठीक है। Which one of the following stations need not be passed through while traveling from H to C? मैं इसको एक सर्कल कर लेता हूं, H से C, C ये है, ये, और H का है, ये H है। हमें H से C जाना है, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन से स्टेशन से पास होना नहीं पड़ेगा हमको। तो H से मैं चलना चालू करता हूं C की तरफ, तो मैं ना रेड से रूट मार्क कर देता हूं, H से C की तरफ चलते हैं, आओ। H से D तो हम जा नहीं सकते वन वे, तो हम क्या करेंगे, H से पहले हम जाएंगे G की तरफ, ठीक है। जी से इधर तो वन वे है, यहां नहीं जा सकते, ये रूट क्लोज है, देन वी नीड टू गो टू बी, देन वी नीड टू गो टू एफ, देन एफ टू वी कैन गो टू डी, डी से वी कैन गो टू ई, एंड ई से वी कैन गो टू डायरेक्टली सी। तो हम कौन कौन से स्टेशन कवर करेंगे, सो वी स्टार्ट फ्रॉम एच, देन वी गो टू जी, देन बी, देन एफ, देन डी, देन ई, एंड देन अल्टीमेटली वी गो टू सी। तो कौन कौन से स्टेशन का, ये स्टेशन एच और सी के बीच में जी बी एफ डी ई आ रहे हैं, तो एनी स्टेशन विच इज आउटसाइड ऑफ दिस 5 स्टेशन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ई तो हाँ ये गलत हो गया, डी डी भी है गलत हो गया, बी बी भी गलत हो गया, तो आंसर कितना है ए। While traveling from H to C, you will not encounter the station A. ए नहीं आ रहा है यहां पे, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना एक बार मेरा देख के, क्वेश्चंस की मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। Once you are thorough with this question, the concept of these questions, you will be able to solve every question of roots and network. So I think I will conclude my session today here only, and we will solve the remaining questions of this topic, directions, distance directions and roots and network, in the next lecture. Till that time, please watch what sir has taught already, then watch this session, try to solve these questions again and again. Previous year questions बिल्कुल thorough हो जाइए, and we'll meet in the next session. Okay, all the very best for your studies, and work hard, study hard. Okay, thank you for watching this session. Thank you.